हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आज नया ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम लोग नए कैंपस को विज़िट करने के लिए आए हैं। नालंदा महा यूनिवर्सिटी का, वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का के न्यू कैंपस, जिसका स्वयं राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके उद्घाटन किया था। उस यूनिवर्सिटी को आज हम लोग रिविज़िट करने आए हैं और ये है उसका मेन गेट और ये है सेकेंडरी गेट इनसाइड द कैंपस। और हमारे साथ आए हुए हैं पंकज सर, बासित सर और शांतनु सर और मनीत सर। तो आज चलिए हम आप लोगों को इस कैंपस का पूरा टूर कराते हैं और एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते हैं कि इतना शानदार किसी कैंपस को बनाया जा सकता है ऐसे जगह पे जहाँ पे कभी ज्ञान का सागर हुआ करता था, जो जगह कभी विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो जिसकी को खंडर बनाने के बावजूद भी इसका रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल तक का जोड़ लगा दिया था। चलिए उस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, जो कि राजगीर के एक छोटे से बिहार के छोटे से जगह राजगीर में स्थित है, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द प्लेस। सी यू देयर। Revival of Nalanda. और शांतनु सर है हमारे साथ और बासित सर और पंकज सर भी हैं और इट्स ग्रेट कैंपस को हम लोग अभी विजिट करेंगे। और थोड़ा सा डिले है ईरिस्का में, जो कि फ्री सर्विस है अंदर घूमने के लिए। तो ये है वेटिंग रूम, जहाँ पे पानी और एसी का फैसिलिटीज़ है और सामान रखने के डाइनिंग एरिया बना हुआ है। उस जगह को हम लोग विजिट करते हैं। शांतनु सर के मन में बहुत सारा ख्याल है, क्यों सर? और एक्साइटेड है आप? लोग कैंपस के अंदर जाने वाले हैं और एक हमारे मित्र मिले हैं, इज अ स्टूडेंट हियर। सो चलिए उनसे कुछ इंटरेक्शन करते हैं। वी विल नो दैट व्हाट इज द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, द ग्रेट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। सो हेलो डियर फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम? Hello, my name is Tegu. This is Tegu. You are from Tegu? From which country? I'm from Indonesia. Indonesia. Great to see you in Rajgir, Tegu. Can you tell me what is the quality of this university? I think the quality is very good. You know, like the faculty support us in our studies, and they give everything we need. You know. In academics, right? Yes. Exactly. Fine. So Tegu, can you tell me which course you are pursuing here? I'm pursuing MBA, MBA in Sustainable Development and Management. Yeah, and I'm now in 4th semester. Oh, great. Yes. Great. So, what is the placement quality of this university in the MBA in Sustainable Development? I don't really know actually. You're in 4th semester. You're just going to graduate. I think the placement, it's good. It's good. Okay. So, what was the experience of your seniors who just graduated from here? I actually don't have any much idea about Okay. that. कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन No, not an issue, not issue. What is the quality of the faculty and all the assistant professor, the professor who is teaching here? They like most of our professors. They graduated from global institutions. Okay. Like from some of them from the USA, also from Australia. Great, great. So they have like high academic ability to teach students, and they give us full support in our academic. Wow, great to know this. And from where did you get the information of this university? I found it by myself. Like I browsed on the internet, and then I found out that Nalanda is offering MBA in Sustainable Development, and it aligns with my background and my future career, so I chose to study here. Oh, great. So, how would you rate this university in 1 to 10? I will rate 9 out of 10. 9 out of 10? Yes. Okay, great. And what is the quality of the lodging and fooding here that they provide to you? They have very good facilities. Yeah. Like we have in our hostel, we have AC. We have two people in one room. And Like is it with chargeable? Yeah. What are the charges? Like it is costly or it's okay according to the facilities? Yeah, it's okay according to the facilities. Like it's worth it, I guess. Okay, great. Okay, thanks Teju for all the information. It is great to talk to you, man. And I'm pleased that you are in our great university in Nalanda studying here. Thank you so much. Have a good day. So much. Have a good day. क्वालिटी इस यूनिवर्सिटी की है कि ये नेट ज़ीरो कैंपस बनाया है। मतलब ये होता है कि जो कैंपस है वो पूरा का पूरा इको फ्रेंडली है और बिल्कुल भी कार्बन एमिशन, वाटर वेस्टेज, इन्वायरमेंटल नॉन फ्रेंडली ये कैंपस नहीं है और सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलता है। और इतनी बेहतरीन कैंपस हमारे राजगीर में अवेलेबल है कि देख के मज़ा आ जाता है कि इतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खुल सकता है। और चूँकि ये सेंट्रल लेवल पे है तो इसलिए ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहा है
और बिहार गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ का आप हालत देख रहे हैं, एक एक सेमेस्टर 2-2 साल तक खत्म नहीं हो पाता। अगर और ऐसे जगह पे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी हमारे राजगीर में खुली है, कितनी बड़ी बात है ये ईरिस का है, जिसके थ्रू ये कैंपस को आप विजिट करेंगे और ये चार्ज लेस है, यानी कोई भी चार्ज नहीं लगता है इस कैंपस को घूमने के लिए। ये हमारे साथ पाठक जी बैठे हुए हैं और ड्राइवर के बगल में बैठे हैं। ईरिस का खुल चुकी है नालंदा यूनिवर्सिटी का भ्रमण कराने के लिए, और स्टार्टिंग में ही हमारे लेफ्ट में एक बहुत बड़ा पॉन्ड दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है इस जगह की, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस 100 एकड़ सिर्फ पॉन्ड ही पॉन्ड है। तो कितनी बड़ी बात है ये। ये हेलीपैड है। भैया बता रहे तो सुनिए ना। एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक यानी मेन ब्लॉक है जहाँ से पूरे यूनिवर्सिटी को कंट्रोल किया जाता है। सारे एकेडमिक के वर्क इसी एडमिन ब्लॉक 2 है ये। और ये ट्राई कलर है जो देखिए पूरे हवा में लहरा रहा है। और वीसी का कितना मस्त है यार। ये योगा सेंटर है एनयू का, और योगा के जो 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है इसी जगह पे कंप्लीट कराया जाता है। और ये जो बेहतरीन आप एलिवेटर और लिफ्ट के साथ बना हुआ एक सेमी सर्कुलर लाइब्रेरी है। बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, वाच टावर की तरह दिख रहा है, मगर ये एक पानी टंकी है और इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि पानी स्टोर कहाँ पे है। ऊपर केवल एक छोटा सा टंकी है इतने से एरिया में जहाँ पानी स्टोर्ड है बाकी। और ये जो कैंपस देख रहे हैं एकेडमिक एरिया का स्टार्टिंग का ये आउटसाइड पार्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। देखने में लग रहा है कि वो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी और पहला यूनिवर्सिटी था, उसका एक रेप्लिका बनाया हुआ है। और देख के लग रहा है कि माननीय नीतीश जी को धन्यवाद दूं कि इतने बेहतरीन कैंपस का इनॉग्रेशन करवाया उन्होंने राजगीर में। ऑडिटोरियम है जिसको बोलते हैं सुषमा स्वराज माननीय जो नेता थी, जो कि अब नहीं रहे हमारे साथ, उनके नाम के ऊपर दिया गया है। कैंपस के अंदर आ चुके हैं और क्या बेहतरीन आर्किटेक्चर है, एक बेहतरीन टीचिंग एरिया बनाया है इन्होंने। ये वो ऑडिटोरियम है जिसमें नीतीश जी और फॉरेन मिनिस्ट्री के सारे नेता लोग बैठ के इनॉग्रेशन किए थे हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी का। और बाकी डिटेल्स अभी गार्ड जी के थ्रू हम लोग सुनेंगे इसमें। जी, श्रवण कुमार, सम्राट चौधरी वगैरह वगैरह जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या पॉलिटिशियन है यहाँ पे आए हैं। और अपना अजीत डोभाल हैं, उनके लड़के का यहाँ लेक्चर हुआ था। कहने का मतलब है गार्ड जी हमें बता रहे कि जो इनॉग्रेशन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी का, सारे जो बड़े डेलीगेट्स आए थे अपने राष्ट्रपति से लेकर माननीय प्रधानमंत्री एवं अजीत डोभाल जो सेक्रेटरी एडवाइजर हैं अपने देश के, सभी का इनॉग्रेशन और कन्वोकेशन इसी जगह पे हुआ था। और बहुत ही बेहतरीन और हाई 300 सीटेड ऑडिटोरियम है, हाई कैपेसिटी ऑडिटोरियम है और सुप्रीम क्वालिटी का है ये। यू कैन नॉट इवन गेस कि क्या राजगीर में किस स्टैंडर्ड का ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। पूरा नॉइस फ्रेंडली और एक हाईटेक ऑडिटोरियम है ये। जो बोध गया में सबसे खास वृक्ष है बोधि वृक्ष, उसी का एक पौधा यहाँ पे श्री माननीय हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से लगाया था। और ये जो पीपल का पेड़ है ये उन्होंने लगाया था अपने हाथ से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से इस बोधि वृक्ष का इस नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्लांटेशन किया था। और आई विश कि ये ज्ञान का वृक्ष बहुत बड़ा हो और तक्षशिला और जो नालंदा का इतिहास है और वो बिहार में और फिर नालंदा के राजगीर में वापस लौट के आए, और जो ज्ञान की धरती बिहार को टाइटल मिली थी वो वापस फिर से जागृत हो। विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कहा जाता है जी, जैसे कि प्राचीन 2000 साल पहले वो मतलब बिल्ड हुए थे, जिसमें 200 प्लस कंट्री से ऑलमोस्ट लोग पढ़ते थे यहाँ पे। और जिसमें कहा जाता है कि अराउंड 2000 टीचर्स थे और 10,000 प्लस स्टूडेंट्स थे उस ज़माने में। अच्छा जी, ये बात आप 2000 साल पहले की बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। और इसका तो एक हादसा हुआ था, वही बख्तियार खिलजी जी ने अपना मतलब वो जो आग वगैरह लगा दिया था, आज उसको नालंदा रीयून्स के नाम से जानते हैं, खंडहर के नाम से जानते हैं।
आ रहे हैं मिनी ऑडिटोरियम देखने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी का, और इसी ऑडिटोरियम में सारे फंक्शंस वगैरह हुआ करते हैं। और आए हुए हैं मिनी ऑडिटोरियम में और एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाने वाले हैं ये हमें एनयू के बारे में। From the sacred teachings of the Vedas to the comprehensive studies in Gurukuls, education in ancient India was revered as a path to enlightenment and wisdom. Among the most illustrious of these centers was Nalanda University. Established in the 5th century AD, this magnificent institution was the world's first residential university, housing close to 10,000 students and teachers at its peak, and a library containing close to 9 million books. Chinese pilgrim and travel. The Prime Minister on 19 June 2024 inaugurated the new campus of Nalanda University. On this occasion, he also planted a sapling of the Bodhi tree on the campus, symbolizing Buddhist heritage and Indian spirituality. During his inaugural address, the Honorable Prime Minister's words about Nalanda carried the weight of its legacy. He mentioned Nalanda is a symbol of. Honorable Prime Minister has championed the restoration and revitalization of this ancient institution. The net zero green campus of the university boasts of world-class infrastructure and has 6 schools and also has 4 centers of studies. ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करें। The university offers various scholarships to international students. Today, Nalanda University attracts scholars from all over the world, offering programs sustainable development. The revival of Nalanda University is also bringing international students to India, embodying the ancient Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, truly making India a Vishwabandhu, a friend to the world. Nalanda University. वो जो ओपन स्पेस देख रहे हैं सीढ़ी के जैसे, जी, जी, जी। वहाँ पे वो सेम एज लोटस फूल के जैसे लगते हैं रात को, ओके, प्रेजेंस ऑफ लाइट्स, सो इट्स कॉल्ड एज कमल सागर, इसलिए इसका नाम पड़ा कमल सागर। वो रिप्लिकेट करता है कमल लोटस, कमल की तरह अपीयर होता है रात में लाइट पड़ने के बाद। कमल की तरह जो बनाए गए हैं उसका भी कैपेसिटी 2000 है, फीचर वो भी है, ओपन थिएटर है, ओपन थिएटर के टाइप का ही बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। गोले गोले देख रहे हैं इधर उधर, चैंटिंग रूम फॉर मॉन्क्स, ओके, चैंटिंग रूम, ध्यान करने के लिए रूम जो होता है उसको चैंटिंग रूम बोलते हैं। ये सब कैंपस एमिनिटीज है, इसमें एमपीटी स्पेसेस है फॉर एग्जीबिशंस, स्टूडेंट्स एग्जीबिशंस वगैरह होता है, इसी में होता है। और ये हमारी फैकल्टी ब्लॉक, फैकल्टी 1 उस तरह, ये फैकल्टी एरिया है जहाँ पे फैकल्टी रुकेंगे, ऑफिस है सर, देयर स्टेइंग एरिया, देयर रिसाइडिंग एरिया, टीचर लोग का केबिन। बहुत ही यूनिक और वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ऐसा, एकेडमिक स्पाइन, और एकेडमिक स्पाइन का मतलब है कि एकेडमिक एरिया है। ऐसे तो देखे थे इसको, क्या लुक है। मैं दावा कर सकता हूँ मैंने 12 यूनिवर्सिटी घूमा है और ऐसा कैंपस कहीं नहीं है विश्व में। दिस इज एन अमेजिंग कैंपस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक, बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल का पार्ट तार है ऑल टुगेदर है कि इसमें सब में बोट चलेगी यहाँ पे, बोटिंग के लिए फ्रॉम द गेट इटसेल्फ, फ्रॉम द मेन गेट, थ्रू वहीं कनेक्शन बनाई जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं एक बहुत ही एस्थेटिक और सुंदर और लुभावु दृश्य, ये एक सामने जो दिख रहा है वो एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का है, नालंदा यूनिवर्सिटी का सेम वो जिमिंग एरिया है, और जो लाइट दे रहे हैं वो देख रहे हैं उधर बास्केटबॉल और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। एक सुपर्ब कैंपस, वर्ल्ड लेवल का कैंपस, वर्ल्ड लेवल का कैंपस है जो कि आप गेस नहीं कर सकते कि अपने राजगीर में भी हो सकता है। एंड आई एम ग्लैड टू से कि आई एम अ बिहारी एंड आई एम स्टैंडिंग इन द कैंपस ऑफ राजगीर। मैं राजगीर के एक बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल के कैंपस में खड़ा हूँ। मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ थैंक यू नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, इतना बेहतरीन विजनरी पर्सन। मैं बता नहीं सकता कि हर एक बिहार के लोगों को गर्व होना चाहिए इस बात पे कि हमारे राजगीर में इस लेवल का एक यूनिवर्सिटी है, और आप ये दावा करके कह सकते हैं कि
इतना बेहतरीन कैंपस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, मैं इंडिया का। और ये जो पानी का बॉडी देख रहे हैं आप, ये ऐसा 100 एकड़ का वाटर बॉडी है। और सबसे खास बात ये है कि एक भी बोरवेल यानी बोरिंग इस नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं है, इसीलिए इसे नेट जीरो बोला जाता है। और बिना बोरवेल का सारे पानी के नीड को इस पानी के पॉन्ड से ही पूरा किया जाता है। अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस से और ये मिनी ऑडिटोरियम के पास वापस आए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को जो भी विजिट करना चाहते हैं यहाँ। थैंक यू कृष्णा जी, ग्रेट टू सी यू। ग्रेट टू, ये जो कृष्णा जी थैंक यू, नेपाल से थे, एक स्टूडेंट है फॉर्मल डेवलपमेंट MBA से। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों को जो यहाँ विजिट करना चाहते हैं, मस्ट 5 से 6 के आसपास आए। 5 बजे वाला स्लॉट सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये जो नाइट व्यू आप देख रहे हैं इतनी जबरदस्त है, इतना बेहतरीन, इतनी सुंदर है कि आपका देख के मूड बन जाएगा और दोबारा आने का मन जरूर करेगा। बहुत ही बेहतरीन है ये कैंपस और मजा आ गया घूम के कि राजगीर में इतना सुंदर दृश्य भी देखने को मिल सकता है एक वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटी का।